انتقام ایک دودھاری تلوار کی طرح ہوتا ہے. دوسروں کو چوٹ لگاؤ گی لیکن خود کو زیادہ زخم لگے گا. مانا کہ تم نے بہزاد کی اہانتوں کا جواب اس کی زندگی سے انتقام لے کر دیا ہے، لیکن یقین رکھو کہ اس انتقام کا نتیجہ سکون نہیں ہے. سکون حاصل کرنا ہے تو تمہیں اسے معاف کرنا ہوگا. مجھے تب سکون آئے گا جب بہزاد کی کمر ٹوٹ جائے گی، جب اس کا سب کچھ تباہ ہو جائے گا. تم کیوں اس شخص کو جو کبھی تمہارا محبوب اور شریک حیات تھا نقصان پہنچا کر حقیقت سے فرار کرنا چاہتی ہو؟ کس حقیقت سے؟ کیا سچ مچ تم کو نہیں معلوم کہ تم خود کو قربانی کا بکرا بنا رہی ہو؟ تم سارا قصور اس کے ذمہ ڈال رہی ہو، حالانکہ کم از کم آدھی غلطی تمہاری اپنی ہے. میں خوشحالی ڈھونڈ رہی تھی لیکن تباہی مل گئی. یہ سب حوادث ان غلطیوں کا نتیجہ ہیں جو تم نے خود کی ہیں. یہ تباہی اس درخت کا پھل ہے جو تم نے خود لگایا ہے. اگر اپنی مرضی سے شادی نہ کرتی اور اگر جھوٹ کا سہارا نہ لیا ہوتا تم نے، تو شاید اس وقت تمہاری ماں زندہ ہوتی، شاید حسام زندہ ہوتے، تم اور بہزاد اور تمہارے خاندانوں پر اتنی مصیبتیں اور بلائیں نہ آتی. ارغوان بی بی کم از کم ایک بار اپنا قصور مان لو اور حقیقت پسندی کی نظر سے دنیا کو دیکھو. ہاں میں نے غلطی کی، لیکن فروزان فر صاحبہ، اگر میری جگہ آپ ہوتی اور آپ کی زندگی جھوٹی محبت کی وجہ سے تباہ ہوتی تو اس طرح نہ سوچتی. تمہیں میری زندگی کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ قربان ہو جاؤں تمہارے. کیا تم جانتی ہو کہ میں ایک خفیہ شادی کا نتیجہ ہوں؟ تم جانتی ہو کہ میرے باپ نے میری ماں کے ساتھ وہی کیا جو بہزاد نے تمہارے ساتھ کیا؟ واہ واہ، لگتا ہے بے وفائی فروزان فر فیملی کے مردوں کے خون میں ہے. شاید ایسا ہو، لیکن میں نے تمہارے برخلاف کینے اور انتقام کی جگہ بخشش کا راستہ انتخاب کیا. میں نے یہ اپنی ماں سے سیکھا تھا. خدا ان کو غریق رحمت کرے. ہمیشہ کہتی تھیں کہ اندھیرے کو اندھیرے کے ذریعے نہیں مٹایا جا سکتا، نفرت کو نفرت سے ختم نہیں کیا جاتا، محبت چاہیے. کینے کو کینے سے نہیں مٹایا جا سکتا، دوسروں کو بخشو اور درگزر سے کام لیا کرو، دوسروں کے لیے مشکلات کھڑی نہ کرو. آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں، لیکن میں بہزاد کو معاف نہیں کر سکتی. کیوں؟ سوچتی ہو کہ چھوٹی ہو جاؤ گی؟ اگر معاف کرنے سے کوئی چھوٹا بنتا تو خدا اتنا بڑا نہ ہوتا. ارغوان بیٹی، یاد رکھنا آج کے زمانے میں لوگوں کو اپنی زندگی کے درد و غم سے نکلنے کے لیے پہلے سے زیادہ دوسروں کو معاف کرنے کی ضرورت ہے. تم ایک تعلیم یافتہ لڑکی ہو، معاشرے میں رہ رہی ہو، جانتی ہو کہ لوگ آج جتنی بھی مصیبتیں اور رنج و الم برداشت کر رہے ہیں یہ سب کینے، نفرت اور دوسروں کو معاف نہ کرنے کی وجہ سے. پلیز میری بیٹی، میری باتوں پر ذرا گہرائی سے غور کرو. نہیں، یہ انصاف نہیں ہے. اس کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے. بہزاد سے کہہ چکی تھی کہ مجھے بے انصافی سے نفرت ہے. اب موقع ملا ہے کہ عملی طور پر اپنی بات ثابت کر دوں. اگر ہر کوئی اپنے قانون کے مطابق عدل و انصاف جاری کرنے لگے تو پھر کچھ نہیں بچے گا. دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. نہیں وکیل صاحبہ، عدل و انصاف قائم کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. عدالت موجود ہے، قانون ہے، خدا ہے. خدا ہر جگہ موجود ہے. کیا ہوا منوجر؟ چلے گئے وہ لوگ؟ لگتا ہے چلے گئے، لیکن اپنا ایک آدمی انہوں نے نگرانی کے لیے ضرور چھوڑا ہوگا. پولیس اس طرح سے ایک کیس کو ایسے آسانی سے نہیں چھوڑتی. اس کا نمبر بھی نہیں مل رہا ہے بالکل. میرا خدا، میں کیا کروں؟ اوفو، ایک نادان غلط کام کرتا ہے اور خمیازہ سب کو بھگتنا پڑتا ہے. میں جانتا تھا کہ یہ لڑکا اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے کوئی مصیبت کھڑی کر کے ہی رہے گا. تم جانتے ہو بہزاد لڑنے بھڑنے والا انسان تو نہیں ہے.
जरूर उस शख्स ने कुछ ऐसा वैसा किया होगा, उसको गुस्सा दिलाया होगा। क्या कहूँ मैं नहीं जानती। क्या मतलब क्या कहूँ? अरे वो बेचारा तो अपने घर में आराम से बैठा हुआ था, हमारे भाई ने जाके उसे मारा पीटा। अगर खुदा न खास्ता मर गया हो तो क्या होगा? तो किसास में फांसी पर चढ़ा देंगे। ओह मेरे खुदा, ये कैसी मुसीबत नाज़िल हुई। अरे ये तुमने क्या किया बेहजाद। खुदा उन लोगों को न बख्शे जो मेरे भाई को गलत रास्ते की तरफ ले गए और वो तबाही के दहाने पर पहुंच गया। क्या तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है? अरे नहीं, मुझे तुमसे क्या गर्ज। लेकिन तुम भी उसकी मदद कर सकते थे। उस वक्त उसको मना ना करते और उसकी हाँ में हाँ ना मिलाते, और उस वक्त जब उसको मदद की जरूरत थी उसको अकेला तो ना छोड़ते तुम। ओफो, तो मैं और क्या करता उसके लिए? मैं तो गरेबान पकड़कर उसे उस लड़की की जिंदगी से बाहर ले आया। मुझे कहां से पता था कि तुम्हारा भाई गबन करना चाहता है? वो कई अरब तूमान के लालच में पड़ गया है और दूसरों के कागजात के जरिए लेना चाहता है। खुदा के लिए जाके उसे ढूंढो, हमें कोई हल निकालना होगा। मनुष्य साहब, हमें कुछ सोचना होगा, कुछ करो। मैं क्या कर सकता हूँ इस बड़े शहर में, इसमें कहाँ ढूंढूं मैं? सलाम वालेकुम बेहजाद। अस्सलाम वालेकुम पपी। क्या हुआ? डॉक्टर कह रहे हैं कि फिलहाल कोमा में है। तो जिंदा है, खुदा तेरा शुक्र। क्या होश में आने की उम्मीद है? उम्मीद है कि होश में आ जाए। तुम भी उसके लिए दुआ करो, बेचारे की माँ कितनी परेशान होगी। अरे खुदा तो ही मेरी मदद करना। पपी जान, आपने फोन करने के लिए कहा था, बाहर के घर फोन किया, उसने रिसीवर उठाया लेकिन बात नहीं की। मैंने भी उसकी खामोशी का फायदा उठाकर उसे सब कुछ बता दिया। बहुत अच्छा किया तुमने। इसी तरह बात करते रहो, इसरार करते रहो तो शायद उसका दिल नर्म हो जाए और तुम्हें माफ कर दे, शायद। उम्मीद है। और आपने क्या किया? आप अरगान को ढूंढने में कामयाब हुई? हाँ, मैंने उससे बहुत बात की, लेकिन उस लड़की का दिल इतना नफरत और कीने से भरा हुआ है कि उस पर किसी बात का असर ही नहीं होता। खुदा करे कि मेरी बातें उस पर कुछ असर कर जाएं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। काम जो तुम्हें कल रात करना चाहिए था। बेटे जाओ थाने और खुद को हवाले कर दो। मैं घर आती हूँ, इस बारे में मजीद बात करते हैं। फिलहाल खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। परेशान ना हो, तुम लोगों को ना बख्शे। मेरे बच्चे के साथ क्या किया? आराम से अम्मी, क्या किया? आराम से, बिल्कुल परेशान ना हो। देखिए कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अपने आप को मोहतरमा खुद को इतना परेशान ना करें, जाके जरा आराम कर लें। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो कभी भी इसको नुकसान पहुंचाने वाले को माफ नहीं करूंगी। उसको फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। तुम्हारे ख्याल में मेरे रिहैब सेंटर में अरगवान के भाई का आना भी एक प्लान था? पता नहीं निगार, उन लोगों से कुछ भी बैद नहीं है। ये जड़ी बूटियों का जोशांदा उन गोलियों से कहीं बेहतर है जो तुम लोग सुबह शाम मरीजों को खिलाती रहती हो। उठो मेरी बेटी, मैं सदके जाऊं, पियो, तुम्हारे लिए बेहतर है। शुक्रिया। खुद को परेशान नहीं करो बेटा। इस लड़के के साथ जो कुछ भी हो रहा है इसी के काबिल है, बल्कि इससे भी बदतर के लायक है। अम्मी जान प्लीज बस करें, ये बेचारी पहले से काफी परेशान है। मैं ऐसा क्या कह रही हूँ? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि इस लड़के की बातों में नहीं आए। इस वक्त ये लड़का मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है ताकि तुम्हारा दिल जीत सके। उफ़ो अम्मी, इसका शोहर है, दुश्मन तो नहीं। जिस इंसान की मिट्टी खराब हो वो 100 दुश्मनों से भी बदतर है। मेरी तुमको नसीहत, इस कीड़े लगे दांत को निकाल के फेंक दो। अगर इसमें पीप पड़ गई तो तुम्हारी जिंदगी भी खराब कर देगा। तुम तो खुद डॉक्टर हो, इन चीजों को बेहतर जानती हो। अम्मी खुदा के लिए बस कर दें। बस करूं ताकि और भी बुरा हो इसके साथ है? यानी तुम उस लड़की से भी गई गुजरी हो? देखा उसने कैसे उसको रुसवा करके उसकी नाक रगड़ डाली? उसकी बेवफाई का क्या जवाब दिया? बेहजाद ने शायद इस लड़की के साथ बेवफाई की हो, लेकिन जब से बाहर से शादी की है कोई गलत हरकत नहीं की है। निगार साहिबा, 1 मिनट आना जरा।
تمہیں شرم نہیں آتی اپنی بہن کے سامنے اس بغیرت کی طرفداری کرتے ہوئے؟ ہے میں نے کسی کی طرفداری نہیں کی امی جان، میں صرف یہ سمجھتی ہوں کہ آپ مدتوں سے بہانہ ڈھونڈ رہی ہیں ان دونوں کی زندگی کو خراب کرنے کے لیے۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں کیوں اس کی زندگی خراب کرنے لگی؟ کیونکہ آپ کبھی بھی بہزاد سے راضی نہیں ہوئی۔ میرے خیال میں آپ کو تو وہ کبھی بھی اچھا نہیں لگا تھا، لیکن امی جان یہ آپس میں بدلے لینے کا ٹائم نہیں ہے۔ آپ اس نفرت کی آگ کو بجھانے کے بجائے مسلسل اس پر تیل چھڑک رہی ہیں۔ دیکھو بیٹا، میں کسی بھی شخص کو اجازت نہیں دے سکتی کہ وہ تم لوگوں کی زندگی سے کھلواڑ کرے، حتیٰ اس کے لیے میں دنیا کو آگ لگا دوں گی۔ امی جان فی الحال تو آپ اپنی بیٹی کی زندگی کو آگ لگا رہی ہیں۔ اپنے منہ سے بڑی بڑی باتیں نکال رہی ہو، یہی رہ گیا تھا کہ اب تم مجھے زندگی کا سبق سکھاؤ؟ بات صحیح ہو تو چھوٹے بڑے کا کوئی فرق نہیں ہوتا، آپ اپنی خود غرضی کی وجہ سے بہار کی زندگی کو تباہ کر رہی ہیں۔ بدتمیز لڑکی، شیطان کہتا ہے کہ ایک لگاؤں تمہیں۔ بس بھی کیجئے نا، ختم کیجئے۔ مجھے تم لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے۔ مجھ میں اتنی عقل اور سمجھ ہے کہ اپنی زندگی کے بارے میں خود فیصلہ کر سکوں۔ ٹھیک ہے، جو کرنا چاہتی ہو کرو، تمہاری مرضی۔ میں بھی خاموش ہو کر اپنا منہ بند کر لیتی ہوں۔ سرور مر گئی، الفاتحہ مع الصلوات۔ اسی ڈاکٹر توکلیان کی بد دعا لگی ہے ہمیں، تم نے اس کا دل توڑا، اسی لیے خدا نے یہ دن دکھایا۔ یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تم سے کام ہے۔ لیکن مجھے تم سے کوئی کام نہیں۔ وعدہ کرتا ہوں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ ٹھیک ہے، صرف چند منٹ کے لیے۔ اندر آ جاؤ۔ اٹھا بھی لے۔ السلام علیکم انسپیکٹر صاحب، میں آزانیہ بول رہی ہوں۔ جس جگہ ہو وہیں کھڑے رہو، آگے مت آنا۔ میں تم سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، میری نظر میں تم ایک اجنبی ہو۔ لیکن تم ایسے انسان نہیں ہو جو اجنبیوں کو اپنے گھر میں آنے دے۔ ان باتوں کی جگہ یہ بتاؤ کہ کس لیے آئے ہو، یہاں کیا کرنا ہے؟ یہ کہنے والے ہوں کہ مہران، ہاں، مہران مر رہا ہے، اس کے موت کے ذمہ دار بھی تم ہو۔ لیکن میں اس کو یہ بتانے گیا تھا کہ مجھے اس کے پلان کا علم ہے، لیکن وہ ہر بات سے مکر گیا۔ پھر تو تم نے اسے مار کر گرا دیا۔ میں صرف اپنا دفاع کرنا چاہتا تھا۔ بہتر ہے یہ باتیں عدالت میں کرو۔ پولیس کو بھی فون کیا ہے، جہاں کہیں بھی ہوں گے ابھی آ ہی رہے ہوں گے۔ بہت اچھا کیا، بس اب میں تھک چکا ہوں۔ جیل ایک ڈراؤنا خواب ہے، لیکن اس سے زیادہ ڈراؤنے خواب بھی مجھے آتے ہیں۔ کم از کم اس بات کی خوشی ہے کہ ان آخری لمحات میں تم سے بات کر سکا۔ کہتے ہیں مفت ہاتھ آنے والی مفت میں چلی جاتی ہے، پر تم تو اپنے پاؤں سے بھی زندگی میں آئے تھے بے مروت۔ ہماری زندگی کا آغاز بہت اچھا تھا، لیکن تم نے ایسا کچھ کیا کہ میرے دل میں تم سے نفرت کینے کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں رہا۔
میں نے خزاں کی طرح تم سے باہر کی امید رکھی تھی، سردیوں کے ایک ٹھنڈے دن کی طرح تم سے گرم دنوں میں گرم دن کی آس لگائے بیٹھی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ ایک عورت کے حق میں سب سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے؟ یہ کہ اس کے وجود میں عشق و محبت کو تباہ کر دو۔ تم نے میرے ساتھ یہی کیا، تم نے میرے اعتماد کو کچل ڈالا بہزاد۔ میری زندگی، میری ماں کو، میرے وقار کو، سب کو ختم کر ڈالا۔ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا، تم نے میرے ساتھ اس کے 100 برابر برا کیا۔ دیکھو، تم نے ایک مرد کو تباہ کرنے کے لیے جو کچھ ضروری سمجھا وہ میرے ساتھ کیا، تو اب ہمارا حساب بے باک ہے نا؟ ارغان، میری تم سے ایک درخواست ہے۔ جانتا ہوں کہ ازالے کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے، جانتا ہوں کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، لیکن مجھے معاف کر دو۔ میرا دل چاہتا ہے لیکن نہیں کر سکتی، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ شاید تمہیں فراموش کر سکوں، لیکن معاف کبھی نہیں کروں گی۔ اظہرنیا صاحبہ کا گھر پولیس۔ جی آئیے۔ بھائی آذرنیا صاحب، ارے السلام علیکم، آپ ٹھیک ہیں؟ کب آئیں؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ مجھ سے ملنے کیوں آئے تھے؟ معاف کیجیے گا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ اتفاق سے سینا صاحب آپ خوب سمجھے ہو۔ آپ کو شرم نہیں آتی اتنے عرصے سے مجھے دھوکہ دیتے رہے ہیں؟ دھوکہ دے رہا ہوں؟ آپ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ آپ کے پلان کے بارے میں۔
आप मेरे पास आए ताकि मेरे से मालूमात लेकर अपनी बहन को दे। सही कह रही हूँ ना? माफ कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप खुद ही मेरी बहन से मिलने पर इसरार कर रही थी। भूल गई आप क्या? नहीं, नहीं भूली, लेकिन ये तुम लोग थे जो एक प्लान के साथ हमारे करीब आए। माफ कीजिएगा, मैं ये काम क्यों करूंगा? इसलिए कि अपनी बहन की मदद कर सके ताकि वो behzad से इंतकाम ले। सीना साहब, आप कैसे लोग हैं? ऐसे लोग जो अपने मकसद तक पहुंचने के लिए हर चीज और हर इंसान से गलत फायदा उठाते हैं। एक मिनट के लिए रुकिए। प्लीज हट जाइए। ये बेइंसाफी है, अपनी बात कहिए और चले जाइए। रुकिए, मेरी बात भी सुनिए जरा। ठीक है, मैं रुक गई। आप बताएं क्या कहना चाहते हैं, फरमाइए। मैं सच्चे दिल से एतराफ करता हूँ कि पहली दफा जब हम यहाँ पर एक दूसरे से मिले तो बिल्कुल इत्तेफाक था, कोई प्लान वगैरह नहीं था इसमें। और इस वक्त भी सख्त पछतावा हो रहा है कि हम क्यों इस ड्रामे में फंस गए। आपको लगता है मैं आपकी बात का यकीन करूंगी? नहीं, कम से कम इस पर गौर करें कि शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो सकती है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप मेरे हवाले से दिल में कोई बुरी बात रखें। पता नहीं, शायद हम दोनों ने गलती की। शायद बेहतर था कि हम इस राज को अपने सीने में छुपाए रखते और इतने मसाइल का बायस ना बनते। देख रहे हैं सीना साहब, कभी कभी बाज अफराद जो मुतमईन होते हैं कि कोई गलती नहीं करेंगे, कितने बुरे काम कर जाते हैं। खुदाफिज। ज्यादा रास्ता है, कहाँ तक जाना आई होगा? आई जल्दी आई, आई अम्मी जान, जल्दी से आइए हमारे साथ। वहाँ तुम पर आगे है चलो, आगे चलो, हम लोग आ रहे हैं। जाओ आगे जाओ, मैं आ रहा हूँ। आखिर ये तुमने क्या किया लड़के? यहाँ से निकलने दो, ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि इंसान बन जाओ बेअक्ल लड़के। हे खुदा। नेहा की क्या खबर है? ठीक है? नेहा के बारे में पूछ रहा है। मुझे दी। हेलो बेहजाद मेरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदके जाऊं, परेशान ना हो। इस मुद्दत में नेहा को देखने जाते रहे हैं। ठीक हो डॉक्टर जाएगा। कहते हैं शायद होश में आने में कुछ अरसा लगेगा, शायद 1 माह, शायद 1 साल। अलबत्ता हमें उम्मीद है कि होश में आ जाएगा। अगर होश में नहीं आया तो? जाएगा वो। क्या मतलब होश में नहीं आया? ये कैसी बातें कर रहे हो बेहजाद? बदशगुनी की बातें ना करो। ला मुझे दो। अच्छी बातें मुंह से निकालो बेटा, मेरा दिल पुरुमीद है। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे 1 मिनट मुझे दीजिए ना, मुझे बात करनी है जरा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसे बेहजाद? ठीक हो? कैसा हो? अरे खामखाई लोग रो रहे हैं, तुम बिल्कुल फिक्र न करो। मैंने बयाज से बात की है, उसने तुम्हारी वकालत कबूल कर ली है। वो कह रहा है तुम्हारा केस लड़ेगा। हमने इस बेगैरत नेखा और उसके फ्रॉडी दोस्त की भी शिकायत की है। आखिरकार पकड़े जाएंगे दोनों। बस बेहजाद एक बताओ, तुम्हें मेरी कसम है, सही सही मुझे जवाब देना। एक बात बताओ, उन 2 के अलावा कोई और भी इस किस्से को जानता है? नहीं, कोई नहीं। तुम्हें मेरी कसम है। कहा ना कोई नहीं। ये इन बातों की जगह नहीं है, दो मुझे। बेहजाद मेरे भाई, मैं कुर्बान तुम पर, तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। हमें अपनी जिंदगी भी बेचनी पड़ी ना तो तुम्हारी आजादी का इंतजाम करके रहेंगे। अगर खुदा न खास्ता नेखा को कुछ हो भी गया तो ताया ने हमारे लिए जो मीरास छोड़ी है ना, वो सारी नेखा की दियत में दे देंगे। तुम फिक्र नहीं करो, ठीक है ना? ठीक है ना मनोज, हम ऐसे ही करेंगे ना? कि इसमें पूछने वाली क्या बात है? करेंगे ना, करेंगे ही, जाहिर है। और क्या करेंगे? बेहजाद यार तुम देखो, परेशान ना हो, सब कुछ
जो कुछ भी है सब कुर्बान कर देंगे तुम्हारे पर। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, बिल्कुल ना करो। हम तुम्हें निकाल के रहेंगे। और हाँ, जब तक तुम यहाँ से निकलोगे मुझे भी जरूर कारखाने से निकाला जा चुका होगा, फिर मिल के रेड़ी खरीदेंगे और गलियों में टमाटर बेचेंगे। मनुष्य बाहर की क्या खबर है? क्या कहूँ यार, वो भी तबाह हो चुकी है। अलबत्ता जिस्मानी लिहाज से नहीं बल्कि ज़हनी लिहाज से सुरैया गुजरे से ज्यादा पता है। लो तुम इससे बात करो। बहजाद मेरे भाई बाहर बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा तुम पर गुस्सा है। अलबत्ता उससे भी हक पहुंचता है। तुम उसका दिल जो तोड़ा है। अच्छा मैं अम्मी को रिसीवर दे रही हूँ, तुम अम्मी से बात करो, ठीक है? अम्मी बात करें। मैं मारी जाऊँ बेटा, हमें बस दुआ करनी होगी कि नेकाह की तबीयत संभल जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस खुदा पर भरोसा रखो, खुदा अरहमर राहिमीन है। बेटा अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम नेमत साहब। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहिबा। ठीक हैं? बेगम साहिबा सुबह जवाब नहीं थे तो डाकिये ने आके ये पैकेट दिया। लाए दे। मुझसे कोई काम तो नहीं? नहीं, आप जाइए। ठीक है, चलता हूँ। That's great. It's too wide. Make it closer, please. Now, it's better. That's good. Okay. सलाम वालेकुम अरगवान। आज मैंने तुम्हें किसी न किसी बहाने से अपने बच्चों के साथ उनके घर भेज दिया ताकि मेरी तीमारदारी में कई रातें बेदार रहने के बाद कुछ आराम कर सकूं। मैं ये सीडी अपनी बेटी के सुपुर्द कर दूंगा कि मेरी मौत के बाद वो ये तुम्हें भेज सके। तुम मेरे लिए एक फरिश्ता थी, एक ऐसा हमदर्द और मोहब्बत करने वाला साथी कि अगर मेरी जिंदगी में ना आती तो मैं बहुत पहले मर चुका होता। लेकिन तुम्हारे लिए मेरी फिक्रमंदी इसलिए है कि खुदा ना खास्ता वो इंसान जो दूसरों के इतना काम आ सकता है कहीं इंतकाम और नफरत के रास्ते पर न चल पड़े। मैंने तुम में ऐसी चीजें महसूस की हैं जो शायद खुद तुमने नहीं देखी होंगी। मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम्हारा माजी अब भी एक साए की तरह तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। माजी और उसकी तल्ख यादें एक यखज़दा मुर्दे की तरह हैं जिसको आगोश में लेना सिर्फ तुम्हारी रूह की बीमारी का सबब बनेगा। देखो अरगवान, कभी कभी कामयाबी और बुर्दबारी में सिर्फ एक बाल जितना फासला होता है। मैं उस दिन से डरता हूं कि कहीं मेरी बची हुई दौलत तुम्हारे हाथों में नफरत के खंजर में तब्दील ना हो जाए जो दूसरों के दिलों में बेबस हो जाए। मेरी गमज़दा और रंजीदा बेगम, तुम्हें यह जानना होगा कि दुनिया में कहीं भी किसी भी सरजमीन और ज़माने में तुमको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो तशद्दुद और इंतकाम के ज़रिए कामयाब और कामरान हुए हों। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से नहीं हो सकता। इंतकाम
बजाते खुद एक तन्हाई है, एक तन्हाई। हालांकि तुम सुकून की तलाश में हो। जान लो कि सुकून का रास्ता दूसरों को माफ करने और दर गुजर की सड़क से ही होकर गुजरता है। माजी को फरामोश कर दो ताकि अपने मुस्तकबिल के सामने मुस्कुरा सको। कल के सूरज के बारे में सोचो जो तुलू होगा। कसम उन दिनों की जो तुम्हारा दिल तोड़ते हैं, और अपने खुदा के अलावा तुम्हारे पास कोई मरहम नहीं होगा। तुम मेरी बेगम, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ICU वार्ड। मैं ख्वास साहब का हाल पूछना चाहती थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बहुत ये लें शुक्रिया आपके लिए। आपका। सलामत कोई हैं। बात नहीं, अस्सलाम बहुत वालेकुम। जहमत की आपने। फिक्र नहीं करो बेटा, मैं ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम। दोबारा फोन करूंगा। बस याद रखना कि तुम जहां भी रहोगी मेरे दिल में रहोगी। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। गजल थी? वालेकुम सलाम। हाँ, गजल थी। शुक्र है कि आप ठीक हो गए। हाँ, बेटी से बात करने के बाद मजीद बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मैं आपसे एक सॉरी करना चाहती थी, क्योंकि मेरी वजह से आपकी जान खतरे में पड़ गई। मुझे माफ कर दें। ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम्हारे तो मजे हैं। बहजाद जेल में सड़ रहा है और तुम्हारा दिल ठंडा हो गया है। दरअसल मुझे यकीन नहीं है कि मुझे यही चाहिए था। क्या है? ऐसा तो नहीं कि जब मैं कोमा में था तो कोई नई बात हुई हो, हैं? नहीं जानती, शायद, या शायद बेहतर है अब इस खेल को खत्म कर दें। तुम पागल हो और मुझे भी अपना दीवाना बना दिया है। दो खुद गर्ज दीवाने हैं। अर्गवान, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो मैं जिंदा बचा, वरना शोहर मारने वाली के नाम से मशहूर हो जाती। अर्गवान, मैं तुम्हारी खातिर उस दुनिया में गया और वापस आया। क्या अब भी कोई शर्त बाकी है? हाँ, एक शर्त और है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं चाहता था कि तमाम बातों के लिए कुछ तुमसे कहने की जरूरत नहीं, जो अपनी जिंदगी गुजारो। मुझे उम्मीद है कि तुम बाहर के लिए एक अच्छे शौहर साबित हो। ऐसा शौहर जिसकी हर औरत को आरज़ू होती है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि मिट्टी निकालते वक्त हमें जिस मसले का सामना हुआ वो सुतून थे जो साथ वाले घर से हमारे जमीन की तरफ निकले हुए थे। उसके आसपास से मिट्टी हटाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जब आप उसके नीचे से मिट्टी हटाते हैं तो हर लम्हे मुमकिन है कि वो सुतून और उस पर खड़ी दीवार नीचे गिर जाए। और माफ कीजिएगा इंजीनियर साहब, मुझे इन टेक्निकल बातों की कोई समझ नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि ये बच्चे मेरे पास अमानत हैं। आप तमाम हिफाजती इक़दाम का ख्याल आप रखें। बेफिक्र रहिए, हम हर चीज का ख्याल बहुत रखेंगे। शुक्रिया, माफ कीजिएगा। आप बात कीजिए। हेलो, सलाम अलैकुम बहसाद, कहाँ हो? अभी अभी रिहा हुआ हूँ। ओहो, इतनी अच्छी खबर और इतनी खामोशी से क्यों? मुझे खुद भी नहीं पता था, आज ही सुबह पता चला। नेखा साहब ने रिजायत दे दी है। अच्छा, खुदा का शुक्र है, खुदा का लाख लाख शुक्र है। असल में मैं सबसे पहले आपको ये खुशखबरी सुनाना चाहता था। हमने इस मुद्दत में आपको बहुत ज्यादा जहमत दी है। नहीं मेरे बेटे, ऐसे नहीं कहते। मैंने तुम्हारे लिए किया क्या है? अरे हाँ पपी जान, बाहर की क्या खबर है? तुम्हें जाके उससे मिलना होगा, उससे बात करनी होगी, तब तक जब तक वो तुम्हें बख्शने पर राजी ना हो जाए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
کدوم خواستن، کدوم جنون، کدوم عشق. شاید خیلی از این حرفا دروغه، تا وقتی با همین از عشق میگیم نباشیم قولمون حتی دروغه. از این عشقایی که زنجیر میشه، هوس‌هایی که دامنگیر میشه، میترسم چون دلم بی‌اعتماده به احساسی که بی تأثیر میشه.